Good morning, sir. My name is Ekta Mange, and it would be great honor if you start the lighting of the lamp. Thank you, sir. Good morning, everyone. Arise, awake, and do not stop until the goal is achieved. I, Ekta Mange, on behalf of our Meraki Pre-Incubation and Incubation Center, consider it as a great honor to welcome our chief guest, Mr. Sagar Ranchur, for today's event. I heartily welcome you, sir. I also extend my warm welcome to our Honorable Principal, Vivek College of Commerce, Dr. Vijayta Shetty ma'am. I also welcome our invited teachers, Anupama Bali ma'am, Anuja Navankar ma'am, Rubina Gonzalez miss ma'am for this event. I also like to welcome our students for the session. Now, I will tell Ashwati Vijaykumar to please take over the session. And established Vivek Vidyalaya in 1962 and followed it up by starting junior college. Vivek College of Commerce was started in the year 1986. It is recognized as a vibrant institution working continuously for the cause of education. Meraki Pre-Incubation and Incubation Center was firstly known as ECEL, that is Entrepreneurship Cell. It was started on 11 December 2018 and later got changed into Meraki Pre-Incubation and Incubation Center on 28 December 2021. Vivek College of Commerce is the first college in Maharashtra to inaugurate an incubation center under MITSC, that is Maharashtra Information Technology Support Center. We have registered ourselves under Ministry of Education Institution Innovation Council, in which we completed and approved all our Q1 and 2 activities. Under IIC, we also have Atal Tinkering Lab scheme, in which we do mapping in different schools. We have also collaborated with most high institutions of India, that is Deen Dayal University and IIT Bombay. We have also conducted many impact lectures for the students in our college. We are happy to announce our incubity under MITSC and IIC. Our biggest achievement is we ranked on the 2nd position in the National Entrepreneurship Challenge at IIT Bombay. We appreciate all our members for the same. So this was all about Meraki Pre-Incubation and Incubation Center. Now, let us hear about a great speaker, Mr. Sagar Ranchur sir. He is a renowned Cambridge, specializing in the field of business communication and also holds a Bachelor of Mass Media degree from University of Mumbai. With an extensive experience of 7+ years in the field of public speaking, he has bagged more than 10 awards, gave more than 200 talks. He has been the youngest anchor for the Chief Minister of Maharashtra and Vice President of India at the age of 21. He has been invited as a guest speaker by more than top 100 organizations, including top companies. Recently, just at the age of 27, Mr. Sagar Ranchur sir was invited to share his success story and inspire millions on the prestigious stage of Joe Talks India. Now, I request Mr. Sagar Ranchur sir to take over the session. Thank you so much for calling me, for inviting me. ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करेंगे, ठीक है. BMS के कितने लोग हैं? BMM? नाइस. मैं BM का हूँ, BMM का हूँ. नाइस, अच्छा से है. ठीक है. BCom? चलो.
फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, ठीक है। और क्या BSc भी है ना? BSc हाउ मेनी पीपल फ्रॉम BSc? ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ राउंड ऑफ जर्नी समझ के लेंगे कि मैंने क्या गलतियां की, हाउ आई केम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ मच आई यू नो व्हेन आई वाज एट योर एज, हाउ मच आई न्यू अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, एक तो वो थोड़ा सा समझ के लेंगे। और उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज एंजल फंड, व्हाट इज वेंचर कैपिटल, ये सारी चीजों के बारे में, जो बड़े बड़े फंडे लोग आजकल यूज कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जान के लेंगे। एज का था ना, यू पीपल आर 20, 21, एनीवेयर डाउन दैट लाइन। एक तो द बेस्ट पार्ट व्हाट आई थिंक अबाउट यू पीपल इज, यू पीपल हैव, you know, apart from your lectures, you people have come here for an external program. कितने लोगों तो पता भी नहीं कि एंजल फंड क्या है, वेंचर कैपिटल क्या है। कितने लोग तो सिर्फ ये जो स्टॉक वाला है तो कुछ तो ढंग का ही आके बोलेगा, ये समझ के आए हैं। बट ऐसे ही मैंने भी किया है। When I was in college, मैं लेक्चर में, अभी मैम सामने तो बोल रहा हूँ बैठा, मगर आपको पता है, मगर यही कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, आगे जाके हम क्या कर सकते हैं। और जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वी यूज्ड टू हैव वेरियस कॉम्पिटिशंस इन आवर कॉलेजेस। सो सिमिलरली व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, आई नीडेड अ रीजन टू गेट आउट ऑफ द क्लास। आई वाज अ BMM स्टूडेंट एंड मेरे को लेक्चर बैठने में कोई खास इंटरेस्ट था नहीं। एंड वन डे वी गेट अ नोटिस इन आवर क्लासरूम that there's something called as elocution, there's something called as youth festival, and youth festival mein there are 44 competitions happening. So any one of you are interested in any of the competition, you people can participate, and students who participate will get some kind of exemption in attendance, ऐसा कुछ तो वो बोल रहे थे। मैंने वही लाइन पकड़ी और मैंने डिसाइड किया कि ये जो भी है, whatever it is, we are going to go. So I went, स्टाफ रूम के बगल में एक लिस्ट लगाई थी कि दिस आर द 44 कॉम्पिटिशंस दैट वी हैव, एंड आई वेंट यू नो थ्रू वन कॉम्पिटिशन की चलो प्ले है, दिस माइम, दिस थिएटर, दिस डांस, दिस सिंगिंग, क्लासिकल सिंगिंग, वेस्टर्न सिंगिंग, और 43 कॉम्पिटिशंस आ गए। मेरे को समझ में आ गया यार सागर तू तो कुछ नहीं कर पा रहा है, ना तेरे को डांस आता है, ना तेरे को सिंगिंग आ रही है, ना तेरे को थिएटर आता है, करेगा क्या? बंक मार के कैंटीन में बैठेगा और क्या करेगा, और बोलेगा क्या? बाद में बोलेंगे एग्जाम नहीं देने देंगे तो फिर क्या? एंड देयर वाज वन कंपटीशन जो समझा ही नहीं क्या है, और उसका नाम था इलोक्यूशन कंपटीशन। आई वाज हियरिंग दैट वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। तो मैं मैम के पास गया, मैम ये इलोक्यूशन कंपटीशन क्या है, मेरे को पता नहीं है, ये मेरे को बताओ। मैम बोलते बहुत सिंपल है, you know, you have to go on stage and you have to go and speak for 5 minutes. ये तो कर सकते हैं, दोस्तों से बात कर रहे, कुछ नहीं यार, कूल अपन ग्रुप के यार, ये तो हो ही सकता है। I decided that I am going to participate for that one competition. And I remember for the first time when I stood on stage, ये जो एंकरिंग कर रहे थे, ये तो बात तो कर सक रहे थे। I went on the stage and I got completely blank. My throat was dry, my legs were shivering, my hands were sweaty, my body was all in sweat. और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये। For the first time I'm standing on stage. My friend pulled me out of the auditorium. He told that सागर एक काम कर, ये सब बंद कर. You know, there is no reason you have to go for any kind of competition. The reason is कि यूथ फेस्टिवल का है ना एक रूल है कि अगर तुम जाके अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करते हो ना तो आपको -1 मिलता है, मगर आप जाके हार जाते हो ना तो मतलब अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो आपको 0 मिलता है, अगर पार्टिसिपेट करके हार जाते हो तो -1 मिलता है। और हमारे कॉलेज में ना हमारे प्रिंसिपल तो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि वी यूज्ड टू गेट दैट ओवरऑल ट्रॉफी। ओवरऑल ट्रॉफी इज स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम कॉम्पिटिशंस में विन करते हैं उनके पास ओवरऑल ट्रॉफी होती है। तो वो ओवरऑल ट्रॉफी है ना हमारे कॉलेज में 12 साल से थी।
उसके लिए प्रिंसिपल मैडम ने शेल्फ बना के ले लिया कि ये हमको पता है कहीं नहीं जा रही। और स्टूडेंट्स आगे मेरे को गाली दे रहे कि अरे तू मत परफॉर्म कर यार, ये ट्रॉफी आज से चली जाएगी तेरे वजह से। एंड फ्रॉम दैट डे माई जर्नी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बिगैन। मैंने इस चीज को समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ। एंड यू नो, कटिंग द जर्नी शॉर्ट, while I was in second year, you know, there was not one competition जो मैंने जीता नहीं था, elocution competition, including you name the competition and I've got gold medal there. Second year में जब भी मैं था कॉलेज में, ऐसी हवा थी कि अरे elocution competition को कौन जा रहा है, सागर जा रहा है, अरे जीत रहे अपन। तो I was always on stage because I was doing elocution competitions. I got an opportunity to anchor for programs. क्योंकि स्पीकर्स एकेडमी में था, जैसे आप लोग ई सेल के पार्ट हो, वी हैड अ स्पीकर्स एकेडमी इन आवर कॉलेज। सो आई यूज्ड टू एंकर फॉर द कॉलेज एंड एवरी डे यू नो देयर वाज सम अदर स्पीकर कमिंग। तो जबरदस्ती हमको, अभी स्पीकर्स एकेडमी में हो, यू हैव टू एंकर, सामने वाला बात कर रहे हैं तो छोड़ के तो जा नहीं सकते। तो अभी बैठे इधर फर्स्ट रो में एंकरिंग कर रहे हैं, स्पीकर बात कर रहे हैं, कुछ चीजें समझ में आ रही है, कुछ चीजें नहीं आ रही है। एंड सो दैट वाज वन फेज, यू नो, what I was doing. I was anchoring every other day. And in third year, I got an opportunity. I got a call. I was sitting in canteen, chilling with my friends. And on the call, they say, we are calling from Ministry of Cultural Affairs. We have got some recommendation of yours and we want an anchor for the Chief Minister of Maharashtra. तो सुन के तो है ना, पहले 2 मिनट विश्वास हुआ ही नहीं, बट ऐसे फोन पे गाली देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ओके ठीक है, विल मेल यू, विल डू दिस। मेरा ईमेल आईडी भी, कॉलेज के टाइम पे ईमेल आईडी तुम सोच रहे हो आगे जाके एम्बेरस होने वाले, ईमेल आईडी चेंज कर लो, अच्छे नाम रखो। तो ईमेल आईडी दिया, ईमेल आया कल्चरल अफेयर से, यू नो, वी वांट यू टू डू एंकरिंग वगैरह ये सब। तो while I was in TY, I was anchoring for Chief Minister of Maharashtra and Vice President of India. And there used to be 10,000 people, 15,000 people. आजाद मैदान आपको पता है? आजाद मैदान में एंकरिंग होते थे। And I was a very aggressive speaker. अभी तो मैं थोड़ा सा धीमे से बात करो क्योंकि ऑडिटोरियम थोड़ा छोटा है, नहीं तो चिल्ला के बात करता हूँ। तो so this was what I was doing while I was in college. And the reason why I am congratulating you is कि कॉलेज के लेक्चर्स ने जितना नहीं सिखाया, अभी उसका इंपॉर्टेंस कम या ज्यादा है वो तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। ऑफ कोर्स डिग्री चाहिए, मगर ये है ना, इधर तुम दुनियादारी सीखोगे और ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिग्री है ना सबके पास है। अपने को चाहिए कुछ तो एज, कि दुनिया के पास वो चीज है, इसके अलावा तुम्हारे पास क्या है, तो ये चीजें तुम्हारे पास बताने के लिए होंगी। और इसलिए मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूं। कॉलेज खत्म हुआ, मुझे करियर करना था पब्लिक स्पीकिंग में। मैंने सोचा यार इतना एंकरिंग किया है, अपन पब्लिक स्पीकिंग में करियर करेंगे, एक बार कॉलेज से बाहर छूटेंगे, कंपनियां बुलाएंगी बड़ी बड़ी हमको, यू नो, वी वांट यू एज ए गेस्ट स्पीकर। तो मैंने तो सोचा था, हुआ तो ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने बोला यार करेंगे क्या यार, ये तो कंफ्यूजन है, पब्लिक स्पीकिंग में करियर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मेरे आसपास 10 डॉक्टर है ना, तो इनको जाके मैं पूछूंगा कि यू नो हाउ टू बिकम ए डॉक्टर, व्हाट यू नीड टू डू। अगर लॉयर बनना है तो 10 लॉयर है जिनको पूछूंगा, सीए बनना है 10 सीए जिनको पूछूंगा। मेरे आसपास कोई पब्लिक स्पीकर ही नहीं है, मैं पूछूं किसको। तो मैंने सोचा यार समझ में कुछ नहीं आ रहा है, काम कर ले, मास्टर्स कर लेते हैं, तो एटलीस्ट घर से वो प्रेशर तो नहीं रहेगा कि अरे क्या कर रहा है, क्योंकि घर वालों का सीन बहुत अलग है। 1 महीने तुम घर पे बैठो, उनको लगता है बर्बाद हो गया लड़का। तो बस उनके भलाई के लिए मैंने सोचा कि अभी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स, और एक चीज पता चली कि जो मास्टर्स डिग्री में मैं पढ़ रहा हूं ना, उसका और जो मैं ऑफिस में कर रहा हूं इसका कुछ संबंध नहीं है। और उससे बड़ा रियलाइजेशन ये था कि ये दोनों का है ना, मुझे पब्लिक स्पीकिंग करना है ना, इससे कुछ संबंध नहीं है। अभी मैं कंफ्यूजन में वापस कि दोस्त तो कैसे काट लिया, अभी घर वालों को कुछ तो बोलना है तो मास्टर्स कर लिया, अभी करेंगे क्या। एक तो ऑफिस में बैठ के सड़ो दिन भर,
एक तो समझ में नहीं आ रहा है, ये करना नहीं है, कर रहे हैं सिर्फ नाम के लिए, वो डिग्री लेके बैठे, वो पढ़ना नहीं था वो पढ़े। और रैंडमली एक दिन मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि इफ यू वांट टू मेक योर करियर इनटू एज एन एंटरप्रेन्योर, इफ यू वांट टू बिकम द नेक्स्ट बिग फाउंडर, कम एंड अटेंड दिस प्रोग्राम। तो वैसे भी जिंदगी वैसी कट रही थी, ठीक है, मेरा चलो संडे का टाइम है, फालतू फ्री का है प्रोग्राम, एसी में बैठने मिले, चलो 2-3 घंटा देख के तो आते। तो कोई टेंशन नहीं है भाई, चलते। ऐसे बजे हमारे भी फोन, ठीक है। तो मैंने बोला चलो देख के तो आता है। मेरे कॉलेज की फ्रेंड थी, उसको बोला चल मेरे साथ, कंपनी ने मेरे को उधर आके क्या बोर हो गया तो क्या मैं तो बात तो करूंगा तेरे से, तो उसको जबरदस्ती लेके गया मैं प्रोग्राम में। और मैं ऐसे आगे आगे नहीं बैठा था, मैं बैठा उधर, ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा, अपना फोन है ना। तो आई वेंट टू दैट प्रोग्राम। वो प्रोग्राम में बड़े बड़े लोग आए थे। देयर वाज कमिश्नर ऑफ एमएसएमई, देयर वर बिजनेस ओनर्स, देयर वर बिजनेस कोचेस, और सब आके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। You know, you want to become a job giver, you should not become a job taker. You should, you know, contribute in the economy of country. इधर रिचार्ज करने के पैसे नहीं है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो, और you know you will get हजारों डॉलर का आपको फंडिंग मिलेगा, और ऐसा होगा, और देश का यूनिकॉर्न बनो, और ये सब ऐसा मोटिवेट कर रहे हैं। अभी जैसे प्रोग्राम खत्म हो गया ना, मैं हो गया था मोटिवेट। हाँ यार, अपन किसके हाथ के नीचे काम नहीं करेंगे, अपन जॉब देंगे। तो मैं मोटिवेट हुआ हूं, मैं मेरी फ्रेंड को मोटिवेट कर रहा हूं, अरे सोच, यूनिकॉर्न बनेंगे अपन। हम इतने बेवकूफ थे, मैं तो था ही, वो इतनी बेवकूफ, वो हो रही है मोटिवेट, वो बोल रहे हैं हाँ करेंगे, तो वो प्रोग्राम से बाहर आए, मोटिवेट एकदम भाई, अभी बलेरो नहीं, अभी बेंटली खरीदेंगे अपन। तो दिमाग में तो सपना बन गया था मेरे। प्रोग्राम के बाहर है, मैंने उसको बोला क्या करते मेरे को बता। तो she was working as a production manager, she was the youngest production manager for Zee। तो ऐसा नहीं था कि निकम में ही है, काम कर रहे अच्छे से। तो मैंने उसको ला रहे नौकरी वोकरी क्या, अपन बिजनेस करेंगे, एकदम पैसा ही पैसा होगा, गिनने के लिए आदमी रखेंगे अपन। तू सिर्फ हाँ बोल, वो भी हाँ बोल दी। तो क्या करेंगे सोच रहे, मतलब बिजनेस करने का अभी आइडिया सोच रहे हम, तो क्या करेंगे। तो उसने बोला कि मेरे को खाना बनाना है ना, ऐसे क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाना मुझे पसंद है, तो मैं घर पे कुछ बनाते रहती हूँ। यू आर गुड इन टू सेलिंग, ठीक है, आई वॉज गुड एट कम्युनिकेशन, आई वॉज गुड एट सेलिंग। एक काम कर, मैं बनाती हूँ तू बेच, ऐसा उस अपन करते। तो मैंने हाँ, अपना फर्स्ट वेंचर होगा ये, ऐसा वैसा। और फिर हमने सारा कैलकुलेशन निकाला कि कितना खर्च आएगा, क्या होगा, अगर छोटा सा कैफे स्टार्ट करना है, कैफे भी नहीं, छोटा सा दुकान स्टार्ट करना है तो कितना खर्चा आएगा। तो 7 लाख रुपए का खर्चा दिखा रहा था। तो मैं घर पे गया, डैडी बैठे थे, डैडी आपका बेटा ना एंटरप्रेन्योर बनेगा, अब चाहते होगा कि आपका बेटा किसी के हाथ के नीचे काम करे, आपका बेटा जॉब गिवर बनेगा, आपका बेटा इकोनॉमी में जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, आप देखो। और मेरे डैडी भी मोटिवेटेड, डैडी बोल रहा हाँ बेटा मेरा तू नाम रोशन करेगा, वेरी गुड, यू शुड गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह ये सब। तो मैंने बोला हाँ ठीक है चलो, मैंने बोला चलो इतना अगर सपोर्ट कर रहे तो और क्या चाहिए। फिर 7 लाख रुपए लगेंगे उसके लिए। उधर पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, तेरे को करने के तेरे दम पे कर, जो करने के तेरे को, नहीं करने के घर पे बैठ, पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। मैंने बोला अरे यार पैसे नहीं दोगे तो कैसे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा आदमी यार, कुछ चाहिए ना।
तो वो प्रोग्राम में मैंने सुना था कि आप बैंक्स में जाके लोन ले सकते हो, बिजनेस के लिए लोन्स मिलते हैं। तो मैं एक बैंक में गया और मैनेजर के पास गया और मैनेजर को बोला कि सर मेरे को चाहिए लोन, मेरे को करना है बिजनेस। तो बोला कि बिजनेस करना है तो लोन तो मिलेगा, मगर मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेज चाहिए ना कुछ तो। मॉर्गेज तो नहीं है मेरे पास, डैडी तो दे नहीं रहे घर, उनको तो विश्वास ही नहीं है कुछ करेगा, तो वो तो कुछ दे नहीं रहे, मेरे पास तो है नहीं कुछ। तो मैंने बोला कि एक काम करो, ये मेरा डिग्री है, मेरे इतने अवार्ड्स है, ये वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का सर्टिफिकेशन है, इसके लिए एंकरिंग किया, सब उनको दुनियादारी बता रहा हूँ, सर मैंने ये किया वो किया, आप दे दो लोन। इसको थोड़ी इज्जत है, तुम मेरे को जमीन बताओ, घर बताओ, कुछ तो टेंजिबल एसेट चाहिए, तुम्हारा सर्टिफिकेट तुम्हारे घर पे रखो। तो मेरे पास तो कुछ टेंजिबल एसेट था नहीं। तो मैं वापिस इनके पास गए, जो प्रोग्राम करके मोटिवेट करके भेजे थे, इनको बोला आप बोल रहे हो एंटरप्रेन्योर बनो और इधर बैंक में लोन नहीं मिल रहे। तो वो बोले नहीं नहीं, ऐसा एक गवर्नमेंट का स्कीम है, मुद्रा स्कीम करके, जहां पे विदाउट मॉर्गेज आपको लोन मिल सकता है। तो मैं बैंक मैनेजर के पास गया, मैनेजर मॉर्गेज वॉर्गेज मांगो मत, ये देखो स्कीम है गवर्नमेंट का ऐसा ऐसा, और कैसा कैसा कन्विंस कर करके उसको 2 महीने लग गए, कन्विंस कर करके फाइनली वो परेशान होके हमको लोन दे दिए। और वैसा चालू हुआ हमारा फर्स्ट बिजनेस। तो वो एक 8 बाय 8 का छोटा सा दुकान, जिसपे मेरी फ्रेंड जो थी वो बनाती थी, मैं बेचता था। और ऐसे कर करके ना 1.5 साल हो गया। अभी जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया ना, सबसे पहला काम जो मैंने किया है वो है इंस्टाग्राम का बायो चेंज, स्टार्टअप फाउंडर, एंटरप्रेन्योर, ये हो गया इंस्टाग्राम, और लिंक्डइन पे फाउंडर एंड सीईओ, ये कर दिया मैंने इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे। ये अपन तो बन गया अभी एंटरप्रेन्योर है, उसको चला रहे। अभी 1.5 साल चलने के वजह ना फिर थोड़ा थोड़ा बोरिंग होने लग गया। क्या रोज सुबह वड़ा पाव लगे, सब जाओ ठेले पे बैठो, तो ये तो थोड़ा थोड़ा बोरिंग काम हो रहा है यार। तो मैंने क्या किया, मेरे नेटवर्क में ना एक ऐसे इंसान थे who was very famous and well known and educated into startup ecosystem। तो मैंने एक दिन उनको इनवाइट किया कि सर आप एक बार आ जाओ, हमारे प्रोडक्ट्स भी ट्राई कर लो कि ये हमने क्या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और हमको थोड़ा सा गाइड भी करना कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप किया जाता है। अभी स्टार्टअप तो कर लिया, अभी हमको चाहिए फंडिंग, हमको चाहिए लाखों रुपए, और आप मेरे को बताना कि कैसे उसको इन्वेस्टर से ढापने। तो वो आए, उन्होंने खाया, उन्होंने बोला यार प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है और तुम अच्छा कर रहे हो। तो मैंने बोला सर ये मेरा स्टार्टअप है। तो बोलते इसको नहीं बोलते स्टार्टअप। मैंने क्या बोलते, इसको थोड़ी बोलते स्टार्टअप, इसको तो बोलते दुकान। बोले ये स्टार्टअप नहीं है। बोले नहीं, इस पे फंडिंग नहीं मिलेगा। तो बोले नहीं मिलेगा। तो इतना जो 1.5 साल में कर रहा हूं, ये स्टार्टअप नहीं है क्या, मैं फाउंडर नहीं हूं क्या? तो बोले नहीं, ये तो फाउंडर एंड सीईओ। तू मेरे को डॉक्यूमेंट बता, तेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या? तो मेरे को यू शो मी ऑन पेपर ना, योर फाउंडर एंड सीईओ। ये तो तूने खुद को स्टार्टअप फाउंडर, एंटरप्रेन्योर, ये इंस्टाग्राम पे कोई पूछता नहीं है ना करने से पहले, तो तुम खुद का नाम देके तुम कर रहे हो। फिर किसको बोलते स्टार्टअप? एंड उस वक्त ही recommended me a few programs, he recommended me a few workshops where I should go and where I should learn what a real startup is। लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को ये पता ही नहीं कि स्टार्टअप मतलब एग्जैक्टली क्या, और यही समझ के लेने वाले हैं हम। एक बार when I went to that programs, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, ठीक है। तो वो प्रोग्राम्स मैं कर रहा था साइमल्टेनियसली, मेरा बिजनेस भी चल रहा था। फॉर्चुनेटली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एन एंजल। बिजनेस कितने तरीके का होता है? हर एक ग्रुप का एक इंसान भी लिखेगा तो भी बहुत है, ऐसा कंपल्सरी नहीं सब लोग को लिख के लेना है। वो अपना कैमरा पे तो चल रहा है, एक लिखेगा बाकी सब फोटो निकालेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहली चीज है ना, ये समझ के लेते हैं कि बिजनेस कितने तरीके का होता है। आइडियली बिजनेसेस 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1 इज ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब, और ये सब तरीके के बिजनेस फाउंडर्स जो है ना, इनको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, इनको बिजनेसमैन बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ शब्द फैंसी है, वो कैसे यूएस में जरा डुबकी मार के आया तो कूल हो जाता है शब्द। तो शब्द सारे फैंसी है, मगर उसका अपन सरल सिंपल भाषा में समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो तीनों तरीके के लोगों को बिजनेस ओनर्स बोलते हैं, तीनों तरीके के बिजनेसेस करने वालों को एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। सबसे पहला तरीका है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब दुकानदार एक दुकान खोल के बैठा है और वो इंसान ओनर जो है वो दुकान में बैठा है और वो बिजनेस कर रहा है, वो धंधा चला रहा है। कस्टमर उसके पास आता है, पैसा देता है, सामान लेके वापस जाता है। इतना सिंपल, प्रोप्राइटरशिप जिसको बोलते हैं, दुकानदार बिजनेस। ठीक है, दिस इज वन टाइप ऑफ बिजनेस। तो तुम्हारा चप्पल वाला, तुम्हारा ग्रोसरी वाला, तुम्हारा इस्त्री वाला, तुम्हारा और क्या, तुम्हारा क्या, अरे बोल बोल बोल, कौन सा वाला, मिठाई वाला, और कौन सा वाला है, कौन सा, दूध वाला, ये सब चाय वाला। चाय वाला तो क्या बन गया, क्या अभी मैं उसके बारे में क्या ही बोलूं। तो ठीक है, तो ये जो सारे वाले है ना, ये सब है ट्रेडिशनल बिजनेस। समझो, ये सब है ट्रेडिशनल बिजनेस। अभी ऐसा बिजनेस जिसको ग्रो करने के लिए हमने थोड़े से टेक्नोलॉजी की हेल्प ली है, उसको बोलते हैं सेमी ट्रेडिशनल बिजनेस। मतलब क्या, तुम्हारा LIC पॉलिसी देखो कि है ट्रेडिशनल बिजनेस, मगर फॉर्म वॉर्म सब ऑनलाइन भरना है। ठीक है, तुम्हारा भी ग्रोसरी स्टोर को छोड़ो, तुम डीमार्ट देखो। डीमार्ट में क्या है कि उन्होंने बिलिंग विलिंग के लिए टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया है। सेमी ट्रेडिशनल बिजनेस कि जिसमें बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया है। अभी मुझे एग्जांपल्स दो कुछ कि सेमी ट्रेडिशनल बिजनेसेस के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, और सोचो थोड़ा। क्या यूपीआई इज कंप्लीट नहीं, प्रिंट आउट वाले कंप्यूटर का हेल्प लिया है, टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया है, और ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे, वेरी गुड। और क्या, मेडिकल स्टोर, वेरी गुड। एक्सरे वाला, हाँ यस, टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया है, ट्रेडिशनल बिजनेस चलाने। मेडिकल स्टोर, पहले इंसान एक खुद के अंदर जाके लिस्ट ढूंढता था, अभी अगर तुम जेनरिक में जाओगे तो लैपटॉप पे ढूंढता है कि ये दवाई है क्या, टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया है। दिस आर ऑल सेमी ट्रेडिशनल बिजनेसेस। ठीक है, और जो थर्ड तरीके का बिजनेस है वो है स्टार्टअप। ठीक है, अभी स्टार्टअप के ना 3 पैरामीटर्स है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट या तुम्हारी सर्विस ये 3 पैरामीटर्स में बैठती है, या कम से कम इन 3 में से 2 पैरामीटर्स में बैठती है, तो ही तुम स्टार्टअप फाउंडर कहलाते हो। मेरे जैसा दुकान डाल के स्टार्टअप फाउंडर बायो में अपडेट मत करना। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स क्या है हम समझेंगे। नंबर 1, a startup is always technology driven मतलब क्या, वो प्रोडक्ट ही टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। अभी इसके टेक्नोलॉजी में हम क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं। यूपीआई 100% टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आदमी आता है क्या यूपीआई पे बात करने के लिए, कंप्लीट टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। स्विगी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है कंप्लीटली। फ्लिपकार्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, उबर, ओला टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो नंबर 1 इज योर प्रोडक्ट व्हाट यू आर मेकिंग शुड बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन। सबसे पहला पैरामीटर ये है। दूसरा पैरामीटर है कि स्टार्टअप इज ऑलवेज इनोवेटिव इन नेचर। इट इज ऑलवेज इनोवेटिव इन नेचर। मतलब दुनिया में आज तक
किसी प्रॉब्लम पे अगर सोल्यूशन नहीं निकला है और आप उस पे अगर कोई सोल्यूशन निकालते हो तो वो इनोवेटिव इन नेचर होगा। या एग्जिस्टिंग कोई सोल्यूशन है किसी प्रॉब्लम पे मगर आप उसको और इजी बनाते हो तो वो इनोवेटिव इन नेचर होगा। कोई प्रोडक्ट ही आपने इन्वेंट किया है तो वो इनोवेटिव इन नेचर हुआ। तो दूसरा पैरामीटर क्या है, क्या होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको तो कोई क्या बोलते हैं, ऑप्शन ही नहीं है, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है कि स्टार्टअप शुड बी स्केलेबल इन नेचर। स्केलेबल मतलब क्या, कि इसको मल्टीप्लाई करना आसान होना चाहिए। मतलब उबर पे 100 कस्टमर्स आए तो भी चलेगा और उबर पे 10 लाख दिन के कस्टमर्स आए तो भी चलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है। स्केल करना देखो बहुत इजी है। स्विगी पे 100 कस्टमर्स रहेंगे तो भी चलेगा, शुरुआत में 100 थे, अभी 1 लाख कस्टमर्स रोज ऑर्डर करें फॉर एग्जाम्पल, तो भी स्विगी का प्लेटफॉर्म लैक नहीं कर रहा है, टेक्नोलॉजी बिल्ड की है। तो स्केलेबल होना चाहिए। एक तो टेक्नोलॉजी होगा तो स्केलेबल हो सकता है, क्योंकि एक ही बार प्लेटफॉर्म बनाना है, फिर तो कितने भी कस्टमर्स है वो उसका अपन बैकएंड में उसका काम करेंगे और उसको स्ट्रांग बनाएंगे, मगर स्केलेबल इन नेचर है। और दूसरा, अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है ना, कि दुनिया में वो सोल्यूशन ही नहीं है और हम एक नया सोल्यूशन लेके आ रहे हैं जो असल में लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो वो स्केलेबल हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई बैटरी है जो 3000 रुपए में बनती है, आपने कोई नई तरीके की बैटरी बनाई जो 1000 रुपए में बनती है, अभी भले वो टेक्नोलॉजी बिजनेस नहीं है मगर स्केलेबल है ना, क्योंकि 1000 रुपए की बैटरी को पूरे दुनिया को जरूरत है उसकी। ठीक है, हमारा कंपटीशन बाकी बैटरी वाले नहीं रहेंगे, फिर हमारा एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है सेगमेंट में। तो एक तो इनोवेटिव होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। ये ही 3 पैरामीटर्स में आपका बिजनेस बैठता है, जिसमें स्केलेबल कंपलसरी है और एक तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन या इनोवेटिव। अगर ये 3 पैरामीटर्स में आपका बिजनेस बैठता है, फिर ही आप एक स्टार्टअप फाउंडर कहलाते हो। अभी इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस और सेमी ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले लोग बेवकूफ हैं। ठीक है, ये स्टार्टअप का है ना, ये अभी आया है, 10, 15, 20 साल पहले से आया है। इसके पहले लोग ट्रेडिशनल सेमी ट्रेडिशनल बिजनेसेस ही कर रहे थे, लोग उससे भी बहुत अमीर हुए। धीरूभाई अंबानी उससे ही अमीर हुआ है, रतन टाटा उससे ही अमीर हुए हैं, दमानी डीमार्ट वाले उससे ही अमीर हुए हैं। तो द टॉप रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड हैव डन सेमी ट्रेडिशनल बिजनेसेस। ट्रेडिशनल बिजनेसेस में टेक्नोलॉजी को लाके उसको सेमी ट्रेडिशनली उन्होंने चलाया है। स्टार्टअप्स तो अभी आ रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा भी आइडिया है जो इनोवेटिव नहीं है या जो स्केलेबल नहीं है, तो ऐसे हताश मत हो जाओ, ये भी बिजनेस चल सकते हैं। मगर आज हम थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे। तो ये है, पहले तो हमने ये समझ के लिए कि स्टार्टअप मतलब क्या एग्जैक्टली। अभी इस जर्नी को देखते हैं कि कैसा जर्नी आगे जाता है। सबसे पहली चीज किसी के दिमाग में आती है वो होती है आइडिया, बराबर है। और एक बार आइडिया आ गई तो क्या करना है, बोल फंड डायरेक्ट। मेरे पास आइडिया, पैसा दोगे क्या? नाइस। क्या बनाना है? प्लान बनाना है। ओके, और क्या लगता है आपको, और क्या करना चाहिए? टीम। ओके। अरे बोलोगे नहीं तो कैसा, कुछ भी बोलो। रिसर्च करना पड़ता है, करेक्ट। और क्या? प्लान एग्जीक्यूट होगा क्या? मटेरियल लेना पड़ता है। ओके, ठीक है। प्लान एग्जीक्यूट होगा क्या? ठीक है। सबसे पहला है ना, आइडिया आने के बाद अभी अपना प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? ये अपने दिमाग में जो भी आइडिया आता है ना, तो अपने को लगता है ये आइडिया ना सबसे तोड़ू है, ऐसा आइडिया आया ही नहीं है किधर। मेरा इतना क्रिएटिव आइडिया है ना, मैं बताऊंगा तो चोरी हो जाएगा मेरा आइडिया। तो आइडिया आ गया ना, तो हम सबसे
पहले क्या करते हैं, आइडियली फाउंडर्स क्या करते हैं कि आइडिया किसको नहीं बताएंगे भाई, आइडिया हमारा अरे लोग बैठे ही है चोरी करने को हमारा आइडिया यार। लोग सोच रहे कि ये ब्रिलियंट दिमाग से आइडिया आया और हम इसको चुराए, हम इसको उठाए। तो सबसे पहला चीज जो आपको करना है, जिसको बोलते हैं आइडिया वैलिडेशन। आइडिया अगर तुम्हारे दिमाग में आया है तो उसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करना है ये थोड़ा सा हाई फंड वर्ड है, मतलब तुमको टेस्ट करना है सच में तुम्हारा आइडिया अच्छा है कि घटिया है। और ये कैसे करोगे, तुम्हारे आसपास के जो 50, 60, 100 लोग है ना, उनको जाके बोल दो कि मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है, ये तेरे को लग रहा है कि इसमें दम है कि नहीं है, ठीक है। और टेंशन मत लो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा आइडिया चोर के स्टार्टअप नहीं चालू कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे आसपास के जो होशियार पब्लिक जो होगा ना, कुछ प्रोफेसर्स होंगे या कोई बाहर के लोग होंगे, मम्मी पापा को मत पूछना, मतलब है वो अच्छे, मगर ठीक है पूछ लो। अगर तुम्हारे माँ बाप भी अगर ऐसे है कि हाँ भाई एंटरप्रेन्योरशिप कर पैसे नहीं दूंगा तो फिर क्या मतलब है, तो ठीक है। तो आसपास के लोगों को पूछना, जिसको बोलते हैं आइडिया वैलिडेशन, ठीक है। ई सेल ने अलग अलग इंक्यूबेशन सेंटर से टाई अप किया है, अलग IIT से, वो मेरे को सारी चीजें बता रहे थे। इन लोगों से फोन पे बात करो, जूम पे बात करो, कुछ भी हो, इनको बताओ, इनको बोलो उनके पास हमारा आइडिया लेके जाओ और पहले आइडिया को वैलिडेट करो, ठीक है। कि तुमको ही तुम्हारा ये प्रॉब्लम लग रहा है कि बाकी सबको भी लग रहा है। तुम तुम्हारे लिए तो प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो ना, दुनिया के लिए बना रहे हो। दुनिया को प्रॉब्लम लगना तो चाहिए कि तुम्हारा सोल्यूशन लेके खुद पे ही मेरे लिए बना, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहला आइडिया वैलिडेट करेंगे हम। 100, 150, 200 लोग, जितने भी लोग हैं हमारे आसपास, सबको बोलेंगे कि ये मार्केट में प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा लगता है कि इस पे ऐसा ऐसा एक इनोवेटिव आइडिया आ सकता है, आपको क्या लगता है। और इसको तुम क्या गूगल फॉर्म पे ले लो या किसी से डायरेक्टली पूछ लो, या कुछ एक फॉर्म बनाओ, क्वेश्चनर बनाओ, कुछ तो बेसिक सा कुछ बनाओ, ठीक है। क्योंकि स्टडी है ना, ऐसे अंदाजे पे नहीं होता है, या ट्रेंड तुमको ऐसे अंदाजे पे, किसको सिर्फ एक दोस्त से पूछ लिया भाई ऐसे ऐसा आइडिया क्या लगता है तेरे को, हाँ सही है, फिर चाइनीज में खाते ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चनर बनाओ, 8-10 सवाल उसके आसपास, तो तुमको आइडिया आएगा। जब भी 150 फॉर्म पढ़ोगे ना, तभी थोड़ा सा दिमाग चलेगा कि हाँ कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है। और ये दोस्त है ना, ये तो अच्छा ही बोलेगा। जब भी लिखने का बाद आएगा ना, एक नंबर का घटिया आइडिया, ये लड़का ही पसंद है मेरे को, सब लिखेगा वो, क्योंकि नाम अननोन है, वो सब लिख रहा है, भड़ास निकाल रहा है। तो वो उससे क्या होगा, तुम्हारा आइडिया वैलिडेट हो गया। अभी अगर तुमको लगा कि हाँ ये सच में प्रॉब्लम है, लोगों को भी लग रहा है ये सच में प्रॉब्लम है और इस पे अपने कुछ तो सोल्यूशन निकालना चाहिए, तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप थोड़ा सा पैसा मांगते हो। जिसने तुम्हारा आइडिया वैलिडेट किया है ना, अच्छा है ना आइडिया, दे 2000 रुपए। ऐसे ही कर करके देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल हु विल फंड यू, फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स, ठीक है। 3 काइंड ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू फंड यू। अब ये जो पैसा इनसे लोग है ना, एक तो इनके पास ज्यादा पैसा है नहीं, इनको 5000 मांगेंगे ना तो 500 रुपए देने वाले लोग हैं, तो अपने पास गिन चुन के कितना 8, 10, 15, 20 हजार रुपए मैक्सिमम जमा होने वाले, ठीक है। वो भी अरे एक दिन मेरा कंपनी यूनिकॉर्न बनेगा ना, तेरे को बेंटली दूंगा मैं, ऐसा सपना दिखा के अपन ने पैसा जमा किया, या बाद में दूंगा वगैरह, जैसा भी है, ठीक है। ये पैसे से हम क्या करेंगे ना, हम बनाएंगे प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब क्या, ये हाई फंडू वर्ड प्रोटोटाइप। इन सिंपल वर्ड्स, हम बनाएंगे एक डमी, हम बनाएंगे एक डेमो, ठीक है। एक जुगाड़ करके एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाएंगे, और ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोटोटाइप एक बार बन गया, ये जो फ्रेंड्स, फैमिली और फूल्स जो फंड करेंगे ना, उसको बोलते हैं प्री सीड फंड। प्री सीड फंड, ठीक है। ये प्री सीड फंड के दम पे हमने क्या किया, क्या बनाया, प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप को लेके हम जाएंगे इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है। इंक्यूबेशन सेंटर में जाके क्या बोलेंगे कि हमने ये मार्केट रिसर्च किया, हमको लग रहा है ये प्रॉब्लम है,
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ऐसा एक प्रोटोटाइप बनाया है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप के लेके जब भी हम इंक्यूबेशन सेंटर में जाएंगे तो इंक्यूबेशन सेंटर क्या करेगा, तुम्हारा जो प्रोटोटाइप है ना, ये तुमको सिर्फ तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में पता है, तुमको इसके आसपास की दुनियादारी के बारे में नहीं पता है कि मार्केट कितना बड़ा है, मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सा है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये सब नहीं पता है। हमको पता है एक प्रॉब्लम है, उसका ये सोल्यूशन है, ये लो, इसका क्या करने का बताओ अभी आगे। ये लेके अपन जाते हैं इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर क्या करता है बताए, इंक्यूबेशन सेंटर में होते हैं मेंटोर्स जो अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग हैं। तो कोई फाइनेंस का आदमी है, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आदमी है, कोई और किसी चीज का, कोई स्ट्रैटेजी का आदमी है, कोई मार्केटिंग का आदमी है। ये चार टकले ये हमको हेल्प करते हैं कि ये जो प्रोटोटाइप है ना, इसका बिजनेस मॉडल कैसा बनाएंगे, क्योंकि अपन उसमें होशियार नहीं है। अपने को सिखाया गया कॉलेज में कि बिजनेस मॉडल कैसा बनाना है, नहीं बताएंगे भी। एक तो सबसे पहली चीज है प्रोटोटाइप देख के बोलेंगे कि ये चलेगा कि नहीं, फालतू में बर्बाद कर रहे हो एनर्जी की, सच में दम है। एक तो वो चीज है। दूसरी चीज है अगर नहीं चलेगा तो इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स करने हैं वो बताएंगे, और अगर चलेगा तो इसका बिजनेस मॉडल कैसा बनाना है ये बताएंगे। एक तो तुमको मेंटोरिंग देंगे, दूसरी चीज जो ये देंगे तुमको एक्सेस टू अदर स्टार्टअप फाउंडर्स, एक्सेस टू देयर देयर इंक्यूबेशन सिस्टम, जो भी उनका इंक्यूबेशन सेंटर होगा उधर बैठने का एक्सेस मिलेगा, उधर अलग अलग स्टार्टअप फाउंडर्स से बात करने एक्सेस मिलेगा, मेंटोर से बात करके गाइडेंस लेने का एक्सेस मिलेगा। उधर अगर उनके फॉर एग्जांपल अगर इंक्यूबेशन सेंटर्स का अमेजोन के साथ टाइप होता है, उन्होंने अलग अलग पार्टनरशिप्स किए होते हैं, तो अगर मेरे को टेक्नोलॉजी का कुछ बनाना है तो मेरे को पहले साइबर स्पेस लेना पड़ेगा। जैसे वेबसाइट बनाने के लिए स्पेस लेना पड़ता है, वैसे ऐप बनाने के लिए स्पेस लेना पड़ता है। वो स्पेस है बहुत महंगा, ठीक है। तो इन्होंने अमेजोन के साथ पार्टनरशिप करके रखा है कि हमारे स्टार्टअप फाउंडर को इतना स्पेस थोड़ा फ्री में दे दो। तो ये जो सारे पार्टनरशिप्स है ना, इनका फायदा उठा के आप आपके प्रोटोटाइप को और थोड़ा सा सॉलिड बना सकते हो, और दूसरी चीज है इसके आसपास एक बिजनेस मॉडल बना सकते हो। ठीक है, अब ये बिजनेस मॉडल बन गया, प्रोटोटाइप बन गया, उसमें थोड़ा सा और फिनिशिंग आ गया, बिजनेस मॉडल इसके आसपास बन गया, ये इंक्यूबेशन सेंटर में हुआ। अभी हम इसको करेंगे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, POC, अगेन हाई फंडू वर्ड। इसको हम करेंगे मार्केट में टेस्ट। पहले हमने किस पे टेस्ट किया बताएं, ये हमारे आसपास के लोग हैं, टेस्ट भी नहीं किए हमने, तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी फॉर्म भर के लिए प्रोटोटाइप से। अभी हम इसको मार्केट में टेस्ट करेंगे, और अब ये टेस्ट हम करेंगे 500 लोग पे, 1000 लोग पे। एक तो इंक्यूबेशन सेंटर में आपको एक चीज क्या पता चलेगी पता है, कि तुम्हारा टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन से देश के, कौन से टाइप के सिटी के, कौन से इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑडियंस को कैटर करेगा। तो वो ऑडियंस कौन सी है ये भी ढूंढने में आपको इंक्यूबेशन सेंटर मदद करेगा। ठीक है, तो वो एक बार ऑडियंस मिल गई तो वो ऑडियंस में हम करेंगे प्रोडक्ट टेस्ट, जिसको बोलते हैं POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये जब हम इसको मार्केट में टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद उसमें अगर अपने को समझ में आया हाँ कुछ तो और चेंज करना है, ये करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह, इसका रिजल्ट लेके उस पर वापस रिवर्क करके वापस टेस्ट करके, एक बार टेस्ट करने से हो नहीं जाता है, अपने को 3-4 बार टेस्ट करना पड़ता है, अलग अलग मार्केट्स में टेस्ट करना पड़ता है। तो एक बार वो करने के बाद, एक बार POC हो गया तो आपके हाथ में आता है MVP, दैट इज कॉल्ड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये जो स्टार्टअप, मैं आपको ये शब्द क्यों बता रहा हूं बताइएगा, क्योंकि होता क्या है कि अपन जब भी अपन शाणे लोग के साथ जाते हैं ना, तो वो सब ऐसे ही होता है, तुम्हारा POC हो गया क्या, तुम्हारा MVP हो गया क्या, तुम्हारा ये हुआ क्या, और अपने को समझ में नहीं आता फिर ये क्या बोल रहे, हुआ रहता है। मगर ये थोड़ी है यार, ये तू बोल रहा है डेमो किया क्या, प्रोटोटाइप बोलेगा तो फिर क्या है। तो इसलिए मैं आपको ये शब्द जानबूझ के बता रहा हूं, ताकि आपको पता चले, कल को कोई अगर आगे शाइनिंग मार रहा है तो आप उसको बोल सकते हो हाँ भाई हुआ है, ये हुआ है। ठीक है, तो किधर तक अपन पहुंचे, MVP। ठीक है, MVP मतलब क्या, कि मार्केट में टेस्ट करके हमको अभी पता चल गया कि ये अच्छा प्रोडक्ट है और ये चलेगा और इसका बिजनेस मॉडल रेडी हो गया।
ठीक है। अभी ये ना टेस्टिंग करने के लिए भी पैसा लगता है। ये प्रोटोटाइप से एमवीपी बनाने का जो प्रोसेस है ना, इसके लिए भी पैसा लगता है। मार्केट टेस्ट फ्री में थोड़ी होगा, वो तो पैसा वैसा थोड़ा सा मार्केट में जाके उस प्रोडक्ट को भी अगर रीडेवलप करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए पैसा लगेगा। और उसके लिए शुरुआत में हमने प्रोटोटाइप बनाने के लिए फ्रेंड्स, फैमिली और फूल से पैसा लिया, जिसको बोलते हैं प्री सीड फंड। इंक्यूबेशन सेंटर क्या करता है पता है? इंक्यूबेशन सेंटर के अलग अलग फंडिंग, गवर्नमेंट के अलग अलग जो स्कीम्स है, जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके साथ भी कनेक्शंस होते हैं। इन सोर्सेस से आपको ये सीड फंड दिलवा सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि सबको मिलेगा। अगर प्रोडक्ट में सच में दम है तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको ये मार्केट टेस्टिंग करने के लिए, फ्रॉम प्रोटोटाइप टू एमवीपी तक जाने के लिए जो भी 10-15 लाख रुपए लगेंगे, जितने भी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, वो पैसे अपने को इंक्यूबेशन सेंटर के किसी टाइप से मिलेंगे। जैसा अपने को फ्री में ये मिल रहा है ना Amazon का वर्क स्पेस, जैसा अपने को ये बाकी फैसिलिटीज मिलती है ना, वैसे ही इंक्यूबेशन सेंटर्स ने किसी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से भी टाई अप किया होता है। ठीक है, मगर कंपलसरी नहीं है कि सबको मिलता है। जिसके प्रोडक्ट में सच में दम है उसको मिलता है। अभी हमारे हाथ में क्या आ गया है? एमवीपी आ गया है। ठीक है, इतना समझ आए? सब समझा है कि नहीं समझ? हाँ, ठीक है। एमवीपी एक बार आ गया ना, तो तुम्हारा बिजनेस अभी थोड़ा थोड़ा चलने लग जाता है कि चलो बेसिक प्रोडक्ट है, हमने थोड़े लोग पे जिन पे टेस्ट किया है ना, उनको ही रिक्वेस्ट करते कि तुम इसको चलाओगे क्या, इसको यूज करोगे क्या, सो दैट एक बार प्रोडक्ट बना मतलब हो गया, ऐसा नहीं है ना। अब ये कितने दिन चलता है, कैसा चलता है, 6 महीने बाद कैसा परफॉर्म कर रहा है, या अगर ज्यादा लोग आ जाते हैं प्लेटफॉर्म पे तो वो वेबसाइट या प्लेटफॉर्म अपना ठीक से चल रहा है कि नहीं, ये भी तो साइमल्टेनियसली टेस्ट होगा। ठीक है, एमवीपी बनने के बाद भी टेस्टिंग चल रही है। और साइमल्टेनियसली एक तो इधर बिजनेस चालू हो गया है, वी हैव सम थोड़े बहुत यूजर्स ऑन द प्लेटफॉर्म और सम पीपल हु आर यूजिंग आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट, एंड साइमल्टेनियसली वी गो टू एन एंजल फंड। अभी एंजल फंड मतलब क्या? एंजल फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन which brings startup founders and investors together. These investors are called angel investors. Angel investor क्यों इनको बोलते हैं? क्योंकि ये एंजल के जैसे आते हैं और हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं। ठीक है, दैट इज द रीजन। कुछ इसमें देयर इज नथिंग हाई फंड, एकदम सिंपल, एंजल जैसा आते हैं और पैसा लगाते हैं, इसलिए एंजल फंड, इसलिए एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, अभी एंजल फंड में क्या होता है ना, अभी आई वॉज एन एंजल फंड मैनेजर, हमारे पास स्टार्टअप फाउंडर्स आते थे कि सर मेरे पास है ना एक आइडिया है। मैं बोलता था बता आइडिया? नहीं सर, वो आप फंडिंग दोगे ना तो बताऊंगा सर, बहुत बहुत भारी आइडिया है सर। तो ऐसे लोगों तो खड़ा ही नहीं करते थे। ठीक है, और ऐसे मेजोरिटी लोग हैं और अपने जैसे ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि अपने को पता ही नहीं है ना कि क्या लेके जाना है। तो जब भी हम एंजल फंड के पास जाएंगे ना और उनको बोलेंगे ना कि हमारे पास एमवीपी है, इसका बिजनेस मॉडल है और अभी हमको फंडिंग चाहिए, तो अपने को खड़ा करेंगे। तो बोलेंगे ठीक है, अभी हमको बताओ कि क्या करना है। उधर आप करोगे पिच करोगे मतलब क्या? इन्वेस्टर्स सामने बैठे होंगे और आप आपका प्रोटोटाइप जो है, आपका एमवीपी जो आपने बनाया है उसके बारे में बताओगे और आप आपके बिजनेस प्लान के बारे में बताओगे कि ये मेरा प्रोडक्ट है या ये मेरी सर्विस है, ये मेरा बिजनेस प्लान है, अगले ये 1 साल में मैं ऐसा ग्रो करना चाहता हूं, 2 साल में ऐसा होगा, 3 साल में ऐसा होगा। ठीक है, ये भविष्य का सपना दिखाते हो और इन्वेस्टर को बोलते हो कि ये करने के लिए मुझे शुरुआत में जो प्रोटोटाइप से एमवीपी के लिए जो पैसा लगने वाला था वो तो इंक्यूबेशन सेंटर से मिल गया। अभी इसको जब भी मैं मार्केट में लेके जाऊंगा ना, तो मुझे इसको स्केल करना है। स्केल करना है मतलब क्या? अभी मेरे पास 500 क्या उसको कस्टमर्स है जो मेरा एमवीपी यूज कर रहे हैं, इसको मुझे लेके जाना है 5 लाख तक। तो वो 5 लाख तक लेके जाने के लिए पैसा तो लगेगा ना। वो पैसा किसके लिए लगेगा बताओ? करेक्ट, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के लिए पैसा लगेगा। और किसके लिए लगेगा?
एम्प्लॉयज के लिए पैसा लगेगा, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे वैसा मुझे बैकएंड में इस प्लेटफॉर्म को भी उतना सपोर्ट करना पड़ेगा ना, उतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयज के लिए पैसा लगेगा, और किसके लिए पैसा लगेगा? स्पेस के लिए पैसा लगेगा। ऑफिस अगर लेना है, अभी छोटी सी टीम बन गई है मेरी, तो 4 लोग 5 लोग 10 लोग अगर हम एक साथ ऑफिस में बैठ के रहेंगे तो उसके लिए पैसा लगेगा। और किसके लिए लगेगा? अगर मैं प्रोडक्ट में हूं, अगर मेरा कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट है और उसको अभी मैन्युफैक्चर करना है, अभी तो ठीक है मैं थोड़ा सा क्या मेरे किसी गैराज में बना रहा हूं या किसी दोस्त के घर पे बना रहा हूं, कुछ तो जुगाड़ पे चल रहा है, मगर यूनिट में घर दोस्त के घर पे थोड़ी बना सकता हूं या मेरे बेडरूम में थोड़ी बना सकता हूं। मेरे को तो उसके लिए थोड़ा वेयरहाउस कुछ लगेगा, कुछ मशीन्स लेनी पड़ेंगी। तो ये जो प्रोडक्शन के लिए भी मुझे पैसा लगेगा और फिर ही मैं इसको स्केल पर कर पाऊंगा। एक सबसे बड़ा खर्चा है पैकेजिंग का खर्चा, ठीक है। ऑनलाइन अगर है तो ऑनलाइन का एक ऑनलाइन पैकेजिंग इज लाइक हाउ डू यू, ऑनलाइन पैकेजिंग में आपके सारे एडवर्टाइजमेंट्स, आपकी जो वीडियोस बनेंगे, दिस इज ऑनलाइन पैकेजिंग। एंड ऑफलाइन पैकेजिंग इज अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्ट है तो उसका पैकेजिंग को जो खर्चा लगता है वो, ठीक है। तो ये सब हम जाके एंजल फंड में, एंजल फंड जो एंजल इन्वेस्टर्स है उनके सामने जाके ये प्रेजेंट करना। शार्क टैंक जो हम देख रहे हैं, शार्क टैंक इज एन एंजल फंड। सामने जो बैठे दे आर एंजल इन्वेस्टर्स। और आप लोगों को है ना, मैं एक चीज मतलब प्रिपेयर रहना। अभी मैंने 500 से ज्यादा पिचेस देखे, कैसे पिचेस होते हैं और कैसे इन्वेस्टर्स सोचते हैं। रियल एंजल फंड में ना भाई सब लोग अश्लील ग्रोअर है, सब लोग डेंजर लोग हैं। तो अगर अभी ये यहां पे ये नहीं टेस्ट करेंगे, मतलब कि ये ऐसा नहीं बोलेंगे आपका प्रोडक्ट बुरा है या आप बिजनेसमैन बुरे हो। दिस पीपल विल टेक यू थ्रू ए टेस्ट, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। देखो आइडिया आपका है, ठीक है, आपने ये 10 लोग 20 लोग 50 लोग 100 लोग पे ट्राई किए हैं, आप बोल रहे हो कि इसको भी मैं 5 लाख लोग तक लेके जाने वाला हूं। अभी इसके लिए जो भी 50 लाख 100 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ लगेगा, ये तो मैं दे रहा हूं, और गारंटी थोड़ी है कि ये चलेगा ही चलेगा। मतलब 100 में से 95 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, ये रेशियो है। 100 अगर स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट हुए तो 95 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। तो वो तो टेस्ट करेगा ना। अभी उसका वो तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत सालों से जानता है, तुम तो आज आए हो और उसके सामने तुम्हारा प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हो, तो ही विल, ऐसे नहीं होता कि आज मैंने बोल दिया चेक ले लो, जैसा टीवी में देखते हैं वैसा नहीं होता है। 4-5 बार पिचिंग होती है, एक ही इन्वेस्टर बैठ के मीटिंग्स करते हैं 2-2 3-3 4-4 बार, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या क्या टेस्ट होता है? एक तो फाउंडर जेन्युइन है कि नहीं ये देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर को है ना, एक अच्छे इन्वेस्टर को ये पता है कि स्किल्स है ना ये बाहर से आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी बाहर से आ सकता है, टीम बाहर से आ सकती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाहर से आ सकता है, सेल्स बाहर से आ सकता है, मगर बर्निंग डिजायर नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, माइंडसेट नहीं है। अगर फाउंडर में ये चीजें नहीं है ना तो ये बाहर से नहीं आ सकती। कल को चैलेंज आ गया ना कोई, अगर चलो मैं कोई स्टार्टअप कर रहा हूं, कोई बड़ा सा चैलेंज आ गया, तो अगर ये फाउंडर का माइंडसेट ही नहीं है ना तो ये भाग जाएगा, ये बोलेगा मेरे को नहीं करना है। अगर इसमें वो बर्निंग डिजायर ही नहीं है ना कि बड़ा कुछ करना है, तो इसके जब भी 1-1.5 लाख यूजर्स हो जाएंगे ना तो ये इनोवेशन बंद कर देगा। हाँ चलो यार, मैंने कहा लाख रुपए बस हो गए, चलो। तो फाउंडर्स, तो इन्वेस्टर्स इनिशियली जब भी एंजल फंड इन्वेस्टर्स जब भी आप लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट तो देखते ही है, प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल तो है ही, इसके साथ साथ आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट, आपका बर्निंग डिजायर, आपको सेक्टर के बारे में कितना नॉलेज है, जिस सेक्टर में आप काम करना चाहते हो, ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। अभी वहां से अगर आप वो टेस्ट से पास हो गए तो आपको मिल जाता है एंजल फंड से फंडिंग, ठीक है।
एंजल फंड से फंडिंग अगर मिल गया तो फिर आपको स्केल करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि पैसा है जलाने के लिए इन सेंस लाइक मार्केटिंग में खर्चा करने के लिए। कुछ भी अगर खर्चा करना है तो हमारे पास कुछ पैसा है, विच इज कॉल्ड एज बर्निंग कैपिटल। ठीक है, जब तक मेरा बिजनेस प्रॉफिट में नहीं आएगा तब तक जो टेक्नोलॉजी के लिए जो खर्चा लगेगा, टीम के लिए खर्चा लगेगा, ऑफिस के लिए लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा, और भी अगर जो सारे खर्चे हैं मार्केटिंग के लिए लगेगा, वो जलाने के लिए पैसा है। अगर नहीं मिलता है तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम धीरे धीरे हमारा भी एमवीपी रेडी हो गया है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला दोनों चीजें ये साइमल्टेनियसली चलेंगी। आप मार्केट में आपका प्रोडक्ट चला रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, उसमें आपके कुछ शुरुआत में कुछ क्लाइंट्स है और उस बिजनेस को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हो। शुरुआत में प्रॉफिट्स की बात नहीं होती है, थोड़ा सा इसको सस्टेन कर रहे हो और साइमल्टेनियसली एंजल फंड में आप पिच कर रहे हो। ठीक है, एंजल फंड में और एक बहुत बड़ी चीज है जो देखी जाती है, हमको क्या लगता है बताए क्या, कि वैल्यूएशन देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट जो भी होगी ना, हमको लगता है कि वैल्यूएशन के दम पे होती है। कि अभी शार्क टैंक आप लोगों ने देखा ना शार्क टैंक, तो उसमें बोलता है ना कि आई एम ऑफरिंग 10% इक्विटी फॉर 1 करोड़ रुपीज, तो विच मीन्स योर कंपनीज वैल्यूएशन इज 10 करोड़ रुपीज। तो जब भी हम एंजल फंड में जाते हैं ना, एंजल इन्वेस्टर के सामने, वैल्यूएशन की बात है ना सबसे लास्ट में होती है। ठीक है, पहले प्रोडक्ट पसंद तो आए, फिर देखेंगे कितना इन्वेस्ट करना है और कौन सी इक्विटी पे करना है। तो जब भी आप एंजल फंड में जाओगे ना, ऑलवेज फोकस ऑन वैल्यू ओवर वैल्यूएशन। मतलब क्या, कि वैल्यू जो आपके प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है वो सच में लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू एड कर रहा है क्या, इस पे पहले फोकस करो। अगर वैल्यू एड कर रहा है ना तो इन्वेस्टर वैल्यूएशन की बात करेगा, क्योंकि उसको तो चाहिए ना मैक्सिमम शेयर जितना ले सकता हूं, मगर ये तो तभी जब भी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तो जब भी आप एंजल फंड में जाओगे ना, आपका पर्सपेक्टिव और आपका माइंडसेट ये वैल्यू का होना चाहिए, वैल्यूएशन का नहीं। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर अपने को अपने खर्चे चलाने के लिए पैसा नहीं दे रहा है, इन्वेस्टर अपने को पैसा दे रहा है, वो पूरा पैसा बिजनेस में ही इन्वेस्ट होना चाहिए। तुम बोलोगे कि मैं 10 लाख रुपए सैलरी लूंगा और घर पे बैठूंगा और घर से काम करूंगा, तो नहीं। वो टर्म शीट जो बनती है ना, उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी सैलरी इतनी होगी, और तुम्हारी सैलरी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं होती, उसके आधे होती है इन मेजॉरिटी केसेस। क्योंकि जो पैसा होता है वो बिजनेस में यूज करने के लिए, बिजनेस में लगाने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आपको वहां से एंजल फंड मिल गया, आपने उस बिजनेस को थोड़ा सा स्केल किया। अभी आपके पास करीबन मान लो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख के आसपास यूजर्स आ गए, या आपने 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख यूनिट्स बेचे हैं। ठीक है, एंजल फंड के दम पे। और वहां से फिर शुरू होता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल मतलब क्या, एंजल इन्वेस्टमेंट में ना मेजॉरिटी ऑफ देम आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब क्या, कि मेरा कोई बिजनेस है, मेरे पास एक्सेस 10-15 करोड़ रुपए पड़े हैं, अभी वो मुझे मेरे खुद के बिजनेस में नहीं लगाने, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे इनोवेटिव बिजनेसेस ढूंढता हूं जिसमें मैं मेरा टाइम वाइम ज्यादा दूंगा नहीं, मैं थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा और मेरा थोड़ा पैसा दे दूंगा। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, या 2-3 दोस्त लोग मिलकर इन्वेस्ट करते हैं। 2-3 दोस्त मतलब 2-3 करोड़पति एक साथ आके वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेंचर कैपिटल में क्या होता है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जिनका करोड़ों रुपए का प्रॉफिट है, वो पैसा ये वेंचर कैपिटल फंड्स को देते हैं कि ये लो हमारे कंपनी का 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, हमारे कंपनी को 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 5,000 करोड़ हमने बिजनेस में लगाए हैं, 2,000 करोड़ हमने हमारे इन्वेस्टर्स को दे दिए एज ए डिविडेंड वगैरह, ये सब, ये 1,000 करोड़ रुपए हम रिस्की बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि भविष्य में जाके हमको इसका अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली फाउंडर नहीं ढूंढने जाते, वो दे गो टू एन वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड क्या करता है कि जिनका ऑलरेडी मार्केट में रनिंग बिजनेस है, प्रोटोटाइप एमवीपी वाला नहीं,
MVP के बाद जो एंजल इन्वेस्टमेंट मिला है उसके दर पे 3 लाख 4 लाख 5 लाख यूजर्स मार्केट में ऑलरेडी है। ऐसे बिजनेसेस को आगे फर्दर स्केलिंग के लिए पैसे देते हैं। दैट इज कॉल्ड वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड में आपको वैल्यू प्रूव नहीं करनी है क्योंकि आपने कर दी है ऑलरेडी। अगर वैल्यू प्रूव कर रहे हो इसलिए 3 लाख 4 लाख 5 लाख यूजर्स है, नहीं तो 3-4 लाख लोग आते ही नहीं। ठीक है, यहां पे जो भी बात होती है तभी वैल्यूएशन की बात आती है, क्योंकि वेंचर कैपिटल में एक आदमी पैसा नहीं लगा रहा है। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन which is giving thousands of crores, and venture capital as an organization have experts who further take decisions whether to invest at what valuation to invest. ठीक है, यहां पे आपका इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है। यहां पे दे ओनली टॉक अबाउट फिगर्स, क्योंकि जो जिन्होंने इनको पैसा दिया है वो भी फिगर्स में बात करते हैं कि इतने वैल्यूएशन पे इतना इतना इतना, या आगे जाके इतना प्रॉफिट होगा, इतना मल्टीप्लाई होगा, XYZ, उसका जो भी क्या इसको हम बोलते हैं फ्यूचर एस्टिमेशंस, उसके बेसिस पे वहां पे सिर्फ वैल्यूएशन पे बात होती है। ठीक है, और वंस यू गेट द फर्स्ट वेंचर कैपिटल दैट इज सीरीज 1, देन इट गोज टू सीरीज 2, सीरीज 3, जैसे जैसे आपके बिजनेस में इनोवेशंस होते रहेंगे। ठीक है, आपका एक ही प्रोडक्ट है, वही आप चला रहे हो जिंदगी भर तो नहीं चलेगा ना। उसमें जैसे हम फंडिंग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको और इसमें इनोवेशंस करने हैं और इसको ज्यादा लोगों तक लेके जाना है और नए नए प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किए। फॉर एग्जांपल उबर देखो, शुरुआत में क्या था, सिर्फ टैक्सी सर्विस था, फिर उन्होंने क्या निकाला, उबर रिक्शा, उबर एक्सेल, उबर प्रीमियम, इंटरसिटी। अब ये सब के लिए टेक्नोलॉजी बनाने के लिए पैसा लगता है ना, ये इन्वेस्टर्स देते हैं नए इनोवेशंस इसमें लाने के लिए। स्विगी पहले क्या था, सिर्फ फूड डिलीवरी था, फिर अभी इन्होंने क्या बनाया, इंस्टामार्ट बनाया। उन्होंने और क्या बनाया, वो डिलीवरी सिर्फ करते हैं सामान आपका। और क्या उन्होंने बनाया, वो जीनी बनाया, फिर उन्होंने स्विगी जीनी बनाया, फिर उन्होंने बनाया आपका स्विगी का ग्रोसरी स्टोर। ये सब दिस इज फर्दर इनोवेशन इन द बिजनेस, इसके लिए पैसा मिलता है। और फिर आप एक एक इनोवेशन, अभी आप इन्वेस्टर के पास जाते हो कि हाँ अगले 1 साल में हम ये इनोवेशन करेंगे, हमारे पास इतने अभी कस्टमर्स है, इनका इतना इतना हम आगे 1 साल में इतने और कस्टमर्स एक्वायर करेंगे, या हम एक नए ज्योग्राफिकल एरिया में जा रहे हैं, वहां पे हमको ब्रांडिंग मार्केटिंग करना है, उसके लिए खर्चा लगेगा। और ये आपको पैसा मिलता है सीरीज में, फर्स्ट सीरीज, सीरीज A, सीरीज B, सीरीज C, सीरीज D। कुछ स्टार्टअप्स में वो सीरीज E, F, G तक जाती है, और हर एक सीरीज में कम से कम आपको 1000 करोड़, 1500 करोड़, 5000 करोड़, जैसी भी आपकी कंपनी की जरूरत है, जितनी आपके कंपनी की वैल्यूएशन है, उसके दम पे आपको पैसा मिलता है। ठीक है, और एक बार जब भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर लिया है, आप सीरीज E, सीरीज F तक पहुंच गए हो, उसके बाद आप आपके कंपनी का IPO लॉन्च करते हो। IPO बताइए क्या है? करेक्ट, मतलब आप क्या करते हो, आप इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हो। अभी कौन सी कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है जो स्टार्टअप है? स्टार्टअप कौन सी लिस्ट हुई है? नायका लिस्ट हुई, ओके, और पेटीएम लिस्ट हुई, जोमैटो लिस्ट हुई। ये सारे आईपीओ अभी लिस्ट हुए हैं। और जब भी आईपीओ आप लिस्ट कर देते हो तो क्या होता है कि जो नॉर्मल पब्लिक है ना, जो आपके यूजर्स हैं, बाकी लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, यूजर्स या जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स है, ये लोग आपके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और जब ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा कंपनी के प्रॉफिट्स में दिखता है, और वो प्रॉफिट में से पैसा इन्वेस्टर लेते हैं, और एक एक करके आपका इन्वेस्टर बाहर निकलते जाता है। जो उन्होंने पैसा लगाया है उसके 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जैसा भी अभी करंट जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से जितना उनका बनता है,
5% है तो 5% के हिसाब से उन्होंने तभी इन्वेस्ट किया था, तभी कंपनी का वैल्यूएशन 500 करोड़ था। आज कंपनी का वैल्यूएशन 5000 करोड़ है फॉर एग्जांपल, तो वो 10 गुना पैसा उनका भी बना। तो वो एक एक करके बाहर निकलते जाते हैं और आपकी कंपनी लिस्ट होती है और फिर आप नॉर्मल जो ऑडियंस है, नॉर्मल जो लोग हैं जिनके डीमार्ट अकाउंट्स है या इन्वेस्टर्स है, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। समझा? सरल, सिंपल, कुछ भी कंफ्यूजन है? ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन आंसर्स चालू करते हैं। कितना टाइम अपने पास और है? मैं कितने देर बात कर रहा था? कितने देर बात कर रहा था? एक 1.5 घंटा? पक्का क्या? नहीं ना? ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन आंसर्स है तो अपन लेते हैं एक दो। एक तो समझा नहीं तो कुछ नहीं समझा है। कुछ है क्वेश्चंस? सोचने के लिए टाइम चाहिए। फोटो निकाला अच्छे से? इंस्टा पे मेरे को चाहिए नया अपडेट है। यस, As you said, the incubation center should have a seed funding. Can you just highlight few startup schemes available in India? so there's Nidhi SSS. Nidhi SSS is a fund which is given to make prototype. ठीक है, वो फंड इसलिए दैट इज सीड फंडिंग। ठीक है, मगर अभी हमने जो बात की है ना, वो बेसिक प्रोटोटाइप तो चाहिए, एकदम ही आइडिया लेके नहीं जा सकते। एमवीपी बनाने के लिए पैसा देते हैं, मगर गवर्नमेंट के भाषा में इसको प्रोटोटाइप के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज वन फंड व्हाट वी हैव इज निधि एसएसएस, दैट इज बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दिस आर इक्विटी बेस्ड फंड्स। देयर आर अदर स्कीम्स अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम ऑल्सो। So as part of that, there are 2-3 other schemes depending upon in which sector you are doing the business. For example, आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको फंड करेगी। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में है तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगा। सो एज एन इंक्यूबेशन सेंटर वी कैन डू टाइप्स विद देम। टाइप्स एज इन हम सिर्फ उनके फैसिलिटेटर बनते हैं। फंडिंग मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, we will just introduce that this is the idea, this is our student, this is what they are doing. आपकी जो rules and regulations है उसमें this idea fits. Can you give him a pre-seed fund? ठीक है, तो why incubation center is important? क्योंकि आपका जो प्रोटोटाइप है ना, वो अगर नहीं भी उस आइडिया पे बैठता होगा ना, तो इंक्यूबेशन सेंटर में जो ये सब मेंटोर्स है ना, दिस विल हेल्प यू कि आपका प्रोटोटाइप उस आइडिया में कैसे आप बिठा सकते हो, इसके लिए भी मदद करते हैं। तो दैट इज वन स्कीम। स्टार्टअप इंडिया के अंदर देयर आर अदर स्कीम्स, दिस आर ऑल इक्विटी बेस्ड स्कीम्स। कि इंक्यूबेशन सेंटर थोड़ा सा इक्विटी लेता है विच इज 3% 4% ऑफ द कंपनी, एंड देन दे डू योर एंटायर डॉक्यूमेंटेशन एंड द वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर यू। एक तो दैट इज देयर। डेप्थ में भी कुछ स्कीम्स है। डेप्थ इज व्हाट? उधार, लोन। डेप्थ में जो स्कीम्स है, देयर आर 2 स्कीम्स। एक इज मुद्रा। मुद्रा मेरे को मिल गया क्योंकि मैं तो रो दिया था बैंक मैनेजर के सामने। सबको नहीं मिलता है क्योंकि बैंक मैनेजर का रिस्क है वो। कल को अगर तुमने नहीं भरा ना तो उसके ऊपर वो एक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो आइडियली मुद्रा देते नहीं है। वो मैं आपको सच इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं भी दूसरे फाउंडर से बात करता हूं, मेरे को मिलना मतलब तुमको मिलेगा, सबको मिलेगा, ऐसे नहीं। मगर ऐसा भी नहीं कि नहीं मिलेगा। मेरे जैसे अगर आपका तैयारी है कि रोज जाके उसको जाके तुम पीड़ सकते हो तो मिल भी सकता है। तो दैट इज वन। दूसरी जो स्कीम्स है ना, देयर आर स्कीम्स कॉल्ड CMEGP, चीफ मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। यहां पे यू गेट ए लोन अप टू 50 lakhs। ठीक है, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दिस आर ऑल बिजनेस लोन्स है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि लोकेशन वाइज है ना, आपका बिजनेस अगर Tier 1 सिटी में है विच इज प्राइम बॉम्बे में है, मुंबई में है, तो आपको 10% का सब्सिडी मिलता है।
मतलब क्या कि अगर 10 लाख रुपए का लोन लिया तो 1 लाख रुपए गवर्नमेंट भरेगा, ठीक है। यही अगर आप टायर 2 सिटी में जाओगे तो आपको 20% का सब्सिडी मिलेगा। यही अगर आप टायर 4 सिटी में जाके करोगे, एकदम यवतमाल में चले गए, चंद्रपुर के जंगल में चले गए और बिजनेस कर रहे हो उधर, तो 40% तक का सब्सिडी आपको मिलता है। तो एक तो लोकेशन वाइज है और भी उसके कुछ अलग अलग पैरामीटर्स है, ठीक है। तो ये मुद्रा हो गया, सीएमईजीपी या पीएमईजीपी। पीएमईजीपी इज प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। इसके अंदर भी ये क्या उसको बोलते हैं, मॉर्गेज की जरूरत नहीं है। इस स्कीम के अंदर यू कैन गेट सम काइंड ऑफ फंडिंग। इसके आगे जाके देयर इज अ स्कीम कॉल्ड एज स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम में रिजर्वेशन के बेसिस पे दे हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जहां पे फंडिंग मिलते हैं, बट स्टैंड अप इंडिया इज ओनली फॉर फ्रॉम 5 करोड़ अप टू 1 करोड़ रुपीज। स्टैंड अप इंडिया इज अप टू 1 करोड़ रुपीज। तो ऐसे गवर्नमेंट हैज मेड डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स डिपेंडिंग ऑन 10 लाख रुपीज तक एक स्कीम, 50 लाख रुपीज तक एक स्कीम, 1 करोड़ रुपीज तक 1 करोड़ तक एक स्कीम। उसके आगे इफ योर आइडिया इज वेरी इनोवेटिव देन ये इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स जो है दैट यू कैन अवेल। वन ऑफ देम इज निधि एसएसएस, बट देयर आर अदर स्कीम्स आल्सो ऑफ वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स। Incubation center to Yes. study all those schemes and Yes. accordingly facilitate the One big thing now in general, now we are a general incubation center. Once we decide now what are we going to be? Are we going to be a technology incubation center, or we are going to be hospitality incubation center, or we are going to be manufacturing incubation center? That is another specialization. कि इंक्यूबेशन सेंटर उधर के एक्सपर्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ करना है तो देयर इज अ स्पेशल इंक्यूबेशन सेंटर हु ओनली लुक्स आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो उनको सब मालूम है मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी स्कीम है, क्या करना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर है तो उनको सब मालूम है टेक्नोलॉजी में क्या क्या करना है। तो द एंटायर पैनल इज लाइक दैट, द एंटायर मेंटोर्स आर लाइक दैट, द इकोसिस्टम इज ऑल टेक्नोलॉजी बेस्ड। सो इस तरीके के देयर आर स्पेशलाइज्ड इंक्यूबेशन सेंटर्स where you can go and if you get into right incubation center then the further path becomes very easy। क्योंकि incubation center क्या है ना, जैसे incubation center ने स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए शुरुआत में ये Amazon वगैरह ये सब से टाइप कर लिया, Amazon से कर लिया, ये प्री सीड जो या सीड फंडिंग जो है उनसे कर लिया। उसी तरीके से ये सेक्टर में जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं ऐसे एंजल फंड से भी वो टाइप करते हैं, ठीक है। अगर एक इन्वेस्टर है, एंजल इन्वेस्टर, जिसने 30 साल टेक्नोलॉजी में गवाया है या जिसको टेक्नोलॉजी की समझ बहुत ज्यादा है, वो हॉस्पिटैलिटी में इन्वेस्ट करेगा क्या? नहीं। तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा क्योंकि उसको उसकी समझ है ना। तो उस टाइम पे व्हाट दिस इंक्यूबेशन सेंटर्स डू, दे फाइंड पीपल लाइक दिस हु आर इन्वेस्टर्स इनटू दिस सेक्टर एंड दे टाई अप विद देम। एक बार आपका आइडिया थोड़ा मैच्योर हो गया ना, प्रोटोटाइप एमवीपी रेडी हो गया, तो यही इंक्यूबेशन सेंटर्स आपको इन इन्वेस्टर्स के सामने भी लेके जाएंगे। तो सही इंक्यूबेशन सेंटर पकड़ना भी एक कला है, कला नहीं थोड़ी समझ चाहिए आपको कि किस तरीके के इंक्यूबेशन सेंटर पे जाना है। एज एन इंक्यूबेशन सेंटर वी कैन partner with all kinds of incubation centers because we are a college incubation center. So and अगर इनमें से कोई टेक्नोलॉजी वाला है तो हम सिर्फ उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि then you go in this incubation center, you go in this incubation center. that is what our plan is for KJ Soumya we have been Yes, yes. University Incubation Center. So that are future plans. Any other question my dear students? सर जैसे आपने बोला इंक्यूबेशन सेंटर एंजल फंड के मतलब बोलते हैं ना, ऐसा बताते हैं एंजल फंड के बारे में वगैरह, तो वेंचर कैपिटल का कैसा होगा फिर कनेक्शन? लाइक एंजल इन्वेस्टर्स वेंचर कैपिटल के बारे में बताएंगे। अभी है क्या पता है तुमको, मैं एक चीज बताता हूँ, ये ऑन कैमरा मत लेके जाओ बस। तो जनरल नॉलेज सेक्टर का नॉलेज थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जेनरिक चीजें बता रहा हूँ कि ठीक है, मगर अगर टेक्नोलॉजी, अगर आप कोई टेक्नोलॉजी बिजनेस बना रहे हो
तो आपको टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स में कौन लोग हैं, या टेक्नोलॉजी में कोई मेंटोर्स है, या टेक्नोलॉजी में कौन एक्सपर्ट्स है जिनसे आप लोगों ने बात करना चाहिए, ये आपको पता चलेगा। थोड़े से फ्री वर्कशॉप्स होंगे, उसमें जाना, मास्टर क्लास कुछ होंगे, उसमें जाना। ऑनलाइन 200, 300, 500 रुपए में बहुत कोर्सेज है, वो करो, उसमें से पता चलेगा आपको ये। और दूसरा चीज है, कितने लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल है, कितने लोगों का 100% अपडेटेड लिंक्डइन प्रोफाइल है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लिंक्डइन का मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट बताता हूं, क्योंकि मैंने वो किया है इसलिए तुमको बता रहा हूं। लिंक्डइन पे ना 50 से ज्यादा रिक्वेस्ट दिन में नहीं भेज सकते, ब्लॉक कर देगा लिंक्डइन तुमको। तो रोज एक तो पूरा पहले खुद का प्रोफाइल पूरा अपडेट करो। कुछ भी जॉब चाहिए, कुछ भी करना है, ये फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ना सब टाइम पास पब्लिक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये फोटो लाइक कर रहे हैं, सब अच्छा है, मगर ये काम का पब्लिक नहीं है। फेसबुक पे तुम डालोगे ना मेरे को जॉब चाहिए, तो कोई नहीं रिप्लाई कर रहा है। ये सब फोटो पे हार्ट भेजेंगे, ये जो तुम्हारा स्टेटस होगा ना, ये 2 लाइक, ये रियलिटी है। और ये जो अगर ये तुम्हारा जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, ये सिर्फ लिंक्डइन पे बनता है। तो लिंक्डइन का एक तो पहले पूरा 100% अपडेट करो प्रोफाइल, और रोज 50-50 लोगों को रिक्वेस्ट भेजना चालू कर दो। अगर आपको एचआर में कुछ करना है तो हेड ऑफ एचआर डालो और रिक्वेस्ट सबको भेजते रहो, एक एक रोज 50 लोग भेजोगे तो फिर वो 1 साल 1.5 साल में 2-3-4 हजार लोगों का आपका नेटवर्क होगा। जब ये आपके पास लिंक्डइन पे 4000 लोग है ना, कॉलेज के बाहर निकलते ही, फिर आपके पास जॉब की कमी नहीं है। फिर आप सिर्फ जॉब सर्च करोगे ना, तो आपके लिस्ट में आ जाएगा किधर किधर जॉब्स है। अगर आप पोस्ट करोगे ना, तो 10 लोग रहेंगे जो बोलेंगे ठीक है मेरे को सीवी भेज, मेरे को सीवी भेज, मैं इधर का एचआर हूं, मैं इधर का एचआर। मगर वो नेटवर्क बहुत धीरे, लिंक्डइन का बहुत धीरे धीरे नेटवर्क क्रिएट होता है, और इसको सीरियसली ले लो, ठीक है। और कुछ सवाल? सॉरी ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक था, मगर ये बहुत जरूरी है। सर आपने जो स्टार्टिंग में आपके बिजनेस के बारे में बोला था, हाँ तो अरे मेरा कैसा वाट लगा इसको सुनने का। अरे ठीक है। तो वो सर आए और उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ये तो स्टार्टअप नहीं है, और अभी क्या करनी है फिर। तो वो बोले कि इसको स्टार्टअप बनाया जा सकता है। तो अच्छा ठीक है, चलो ऐसा बनाया जा सकता है, क्या करना पड़ेगा? तो एक काम कर, तो पहले तो वो कोर्स करके 4-5, ठीक है। मैं बेसिक तेरे को समझाने के लिए मेरे पास टाइम है नहीं, तो मैं कोर्स किया। मैं एंजल फंड में काम करना चालू करे मैंने, और साइमल्टेनियसली पहले जो हमारा 8x8 का छोटा सा जो शॉप था ना, उसको पहला एक बिजनेस मॉडल बनाया हमने, और वो अभी एक 450 स्क्वायर फीट का कैफे है, ठीक है। और अब ये 450 स्क्वायर फीट का कैफे बनाया, मतलब क्या हुआ, पहले ट्रेडिशनल बिजनेस था, अभी मैं गल्ले पे बैठा हूं, क्या कैफे चालू है ना, इसको क्या बनाया हमने, सेमी ट्रेडिशनल बिजनेस बनाया, ठीक है। पहले तो ट्रेडिशनल से सेमी ट्रेडिशनल पे लेके आए, अभी सेमी ट्रेडिशनल का हमने बनाए फ्रेंचाइजीज, क्या इसको बोलते हैं, फ्रेंचाइजी प्लान्स, कि इसको स्केल, क्योंकि स्टार्टअप करना है मतलब क्या चाहिए, इनोवेटिव इन नेचर है, क्योंकि हमारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है। अभी हमको सिर्फ एक ही चीज चेज करना था, स्केल, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो है नहीं हमारे बिजनेस में कुछ, तो स्केल करना है। तो इसके लिए हमने बनाए इसके फ्रेंचाइजी प्लान, और अभी हम इसके फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं। तो यू कैन सर्च ऑन इंस्टाग्राम, देयर इज टकिन फूड्स, TUCKIN FOODS। कभी खाने वाने आओगे तो आ जाना। तो अभी इसको इस तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेस को भी स्टार्टअप बनाया जा सकता है, और इसलिए गाइडेंस की जरूरत है। वो गाइडेंस मेरे को मिलने के लिए 2 साल लगा, आप लोगों को आज मिल रहे हैं। आप लोगों के पास इंक्यूबेशन सेंटर है इन हाउस, उसका फायदा लो। हाँ, और कुछ? Saying this, sir, because very upcoming months, we are launching 3 EDP programs, entrepreneurship development programs. One is we have tied up with Dasha University, US. So that program is going to start from 9 to 30.
students for that. And another 2 programs are scheduled. So thank you so much for actually guiding our students here. And I think the students will take the maximum out of those certificate programs. हाँ, ये जो मैडम बता रही है ईडीपी प्रोग्राम के बारे में, तो सर ने मेरे को भेजा था ना, जा फिर कोर्स करके, दैट कोर्स इज ईडीपी प्रोग्राम. ठीक है, तो आई वेंट फॉर एन 18 days रेसिडेंशियल प्रोग्राम. वैसे ही ऑफलाइन बैचेस भी होते हैं. ऑफलाइन मतलब वैसे कॉलेजेस में होते हैं, वीकली ट्वाइस जैसा भी होगा. ये प्रोग्राम अटेंड करो. एक तो बहुत कम लोगों को मिलता है, आप लोगों को मिल रहा है तो उठाओ इसका फायदा. इसमें बहुत क्लैरिटी आ जाएगा. एक तो माइंडसेट क्या, एटीट्यूड क्या, बर्निंग डिजायर क्या, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, तो ये एक्चुअल में है क्या ये पता चल जाएगा. अभी अपन ने सिर्फ ढांचे के बारे में बात की, ऊपर से कैसा दिखता है. चलो, दैट्स इट. Thank you so much for bearing me for last 1.5 hours. Thank you so much. If you want to connect with me, एक तो LinkedIn है. LinkedIn पे you people can connect with me, or I am hyperactive on Instagram also. Sagar Anshur is my name. You can get me on Instagram and LinkedIn. I am very active, so we can connect there. If you have any doubts, कुछ इंट्रोवर्ट अगर होंगे, यहाँ पे सवाल नहीं पूछना है, ऑकवर्ड सवाल है, बेसिक सवाल है, इंस्टाग्राम पे पूछो, लिंक्डइन पे पूछो, विल बी इन कनेक्ट. थैंक यू सो मच. Good morning, one and all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this occasion. On behalf of Vivek College of Commerce, I take this opportunity to propose a humble of thanks to all those who have directly and indirectly contributed to our session, organized by Meraki Pre-Incubation and Incubation Center. At the outset, I wish to express my deep sense of gratitude to our chief guest and keynote speaker, Mr. Sagar Ranchu, for accepting our invitation and giving us your valuable time. Sir, my heartfelt thanks to you for giving an excellent coverage on investment and funding. We also thank Principal Ma'am Dr. Vijeta Shetty, Anupama Bali Ma'am, Anuja Narvankar Ma'am, Dr. Tangadurai Sir, and Lubina Gonsalves Ma'am for giving us this platform for conducting this event. I thank all my audience for cooperating during this session. And lastly, I would like to thank the entire Meraki Pre-Incubation and Incubation team for making this event a great success. Thank you, sir.